فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنزُ العباد، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت ناک خبریں لیے حاضر ہوں۔ یقیناً اس سلسلے میں ہم عبرت ناک، افسوسناک، بعض اوقات حیرت ناک بھی خبریں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ آج بھی جو ہمارے اس سلسلے میں اگرچہ ایک ہی خبر ہے لیکن وہ بڑی غمزدہ کرنے والی اور اس میں عبرت کے مدنی پھول بھی ہیں کہ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے کہ اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہنے، موبائل فون کے استعمال اول تاخیر نہ کرنے کی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، عبرت حاصل کرنے کی بھی نیت کر لیجئے، نیکی کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیز الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس حدیث پاک کی پیروی بھی کرنے کی میں نیت کرتا ہوں۔ اصل میں بات اتنی نئی ان معنوں پر نہیں ہے کہ اس طرح کے واقعات اگر میں کہوں کہ ہر سال ہوتے ہیں تو شاید غلط نہیں ہے۔ سالانہ خبریں چھپتی ہی ہیں، ہم سنتے ہی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ہم افسوس بھی کرتے ہیں، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں۔ آج ہمارے باب المدینہ کراچی میں، پاکستان میں بے شمار لوگ کہہ سکتے ہیں کہ غم سے نڈھال بتائے گئے۔ کئی گھر یہ غم اور علم میں ڈوب گئے۔ جی، میری مراد باب المدینہ کراچی کے ساحل سمندر پر جو ڈوب گئے ہمارے اسلامی بھائی، ان کا متعلق آج میرا یہ سلسلہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں اور آپ سے بھی عرض کروں گا کہ ہم سب دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے جو ڈوب گئے، موجیں ان کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ کل تک کی تو رپورٹ یہی تھی کہ 41 لاشیں ان کے ورثاء کے حوالے کی گئی ہیں،
आज की कोई जदीद इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है कि कुछ इसमें प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई। यकीनन एक घर का अगर कोई कफील चला जाए या एक ही घर के 2-3 अफराद चले जाएं, पता चला 2 भाई थे 17 साल और 19 साल के, ये भी पता चला, वल्लाहु आलम उस घर पर क्या बीत रही होगी, कोहराम मचा हुआ होगा, महल्ले के महल्ले गम अफसोस में डूब गए होंगे। मैं उन सब तमाम तर लवाहिकीन को से ताज़ियत भी करता हूं जिनके अजीज रिश्तेदार भाई बेटे वगैरह डूबकर दुनिया से रुखसत हुए। अल्लाह तबारक व तआला आपको सब्र अता फरमाए, सब्र पे अजर अता फरमाए, और इन तमाम डूबे हुए मुसलमानों की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, इनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्हें परोस अता फरमाए, इनके सारे सगीरा कबीरा गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। यकीनन एक मुसलमान को जब तकलीफ पहुंचती है, उसको गम व दुख पहुंचता है, तो दूसरे मुसलमान को इसका एहसास होना चाहिए। जहाँ दुनिया भर में कहीं भी हो, सिर्फ पाकिस्तान ही की बात नहीं है, जहाँ भी मुसलमान को तकलीफ पहुंचे, मुसलमान को दुख पहुंचे, मुसलमान परेशानी में हो, कुफ्फार के जुल्म व सितम का शिकार हो, जो भी हो, अगर मुसलमान की तकलीफ, उसकी परेशानी का पता चले, यकीनन हम सबको तकलीफ महसूस करनी चाहिए कि मुसलमान का जो मामला है ना, वो एक जिस्म की तरह है कि अगर एक हिस्से बदन को अगर तकलीफ हो तो उसको पूरा बदन महसूस करता है। तो ये भी गोया कि ऐसा एक वाक़या है जो कुछ सानिया हुआ। हमारे पास इसके मुतालिक कुछ वीडियोस जमा हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ, फिर इनके लवाहिकीन के साथ जो ताज़ियत वगैरह भी हमारे मुबल्लिगीन और ज़िम्मेदारान ने जाकर की है, इसके भी कुछ मनाजिर हमारे पास महफूज हैं। खैर, हमारे इस्लामी भाई वहाँ पहुँचे जहाँ ये वाक़या पेश आया है, और वहाँ जाकर वहाँ के बाद ज़िम्मेदारान से कुछ इस सिलसिले में मालूमात हमने हासिल करने की कोशिश की कि ये क्या, कैसे हुआ ये वाक़या। तो आइए पहले हम देखते हैं कि कैसे हुआ वाक़या, फिर इसके बाद गिरेजवली आगे चलते हैं। पहले मैं आपको सिर्फ साहिल समुंदर का वो होने वाले वाक़ये के वो बताऊंगा, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। फिर इसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो इनके अजीज़ और लवाहिकीन से जो हमारी मुलाकातें हुई, ताज़ियत हुई, दुआ वगैरह हुई, इंशाअल्लाह फिर उन मनाजिर की तरफ मैं आपको लेके चलूँगा। मेरा नाम मोहम्मद एहतशामुद्दीन है और मैं चीफ फायर ऑफिसर फायर डिपार्टमेंट KMC का। ईद के मौके पे यहाँ काफ़ी लोगों का हुजूम था और यहाँ पिकनिक मनाने आए थे। थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं बच्चे, कम उम्र, और वो नहाने के लिए अंदर तक चले गए बगैर किसी खौफ और डर के। अच्छा, एक वक्त होता है समंदर के लो टाइड और हाई टाइड का, तो उनको अंदाज़ा नहीं हुआ। फिर समंदर में नशेब व फराज भी होते हैं और घड़े भी होते हैं और कुछ लहरें भी ऐसी आती हैं, और जब पानी उतर रहा होता है तो उन बच्चों को या नहाने वालों को अंदाज़ा नहीं होता कि किस वक्त समंदर उनको खींच लेगा। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, और उसी में कुछ लहरें, कुछ ऐसा एक टाइम आया कि बहुत सारे लोग एक साथ डूबे। अमूमन होता है कि जो जिनके प्यारे होते हैं वो कोशिश करते हैं तो वो भी ऐसे अमूमन डूब जाते हैं, क्योंकि उनको तरीका नहीं पता होता है, उनको प्रोसीजर नहीं पता होता है, समंदर के मिजाज का पता नहीं होता है, तो ये अमूमन होता है। मगर इस केस में ये ज़्यादा ये हुआ कि क्योंकि बहुत सारे लोग थे, अपने तौर पर शर्तें लगा के वो करके वो एक साथ इंजॉय कर रहे थे, और कुछ एक लम्हा ऐसा है कि ये डूबे। काफी रश था, तो काफी जगह पे लोग डूबे हैं ना, अभी कंफर्म पता नहीं है कितने लोग हैं। कोई ऐसा है अकेला आया, तैरा, डूब गया, किसी को पता भी नहीं है। हादसे की वजह ये बन गई, तो देखो आगे जो पानी है नहीं, ये हो गया छोटा पानी हो गया है, ये अभी आगे जो है ये देखो खुश्की नजर आ रही है। लोग जो है उससे यहाँ से चल के उधर खुश्की में जाते हैं, जब खुश्की में जाते हैं, खुश्की से आगे जो है नहा रहे बंदे, जब बंदे जो नहा रहे हैं तो वो जो पानी जो है हाइटेट होता है, हाइटेट के टाइम में अभी वो पानी इतना हो गया उन लोगों को, अभी वो बोलते हैं कि हम लोग बाहर निकले के वजह अभी पीछे आते हैं तो पीछे जो है गहरा पानी हो जाता है, खड्डा है। अभी जो खड्डे में आ गया तो पानी की रेस्ट में आ जाते हैं लोग, जो है अंदर चले जाते हैं, पर उनको तैरना नहीं आता, वो रेस्ट में अंदर जो है डूब जाते। अगर लाइफ गार्ड मौजूद नहीं है, जिस बंदे को तैरना नहीं आता हो तो वो जाए नहीं वहाँ पे। अगर जिसको तैरना आता हो तो
उसके पीछे से पकड़ ले, उसके पीछे बालों से पकड़ना पड़े, आगे से नहीं पकड़ना पड़े। अगर आगे से पकड़ोगे तो आपको लेके जाएगा, डूब जाएगा। अभी नया सिस्टम मिला हुआ है रेस्क्यू ट्यूब, वो बहुत जबरदस्त है इंसान के लिए, वो इंसान को बचा देता है, लहरों के अंदर से भी निकाल लेता है। ये मेरे पास इस वक्त 12 अगस्त 2013 की खबर है कि ईद उल फितर की तफरी मौत बन गई। मुख्तलिफ शहरों में 18 अफराद डूबकर हलाक। 2009 ईद की खुशियां मनाने वाले 12 अफराद समुद्र में डूब गए। 2013 अगस्त बाबुल मदीना कराची के इलाके बिन कासिम टाउन में 6 अफराद समुद्र में डूब गए। ये 2013 10 सितंबर रोजनामा एक्सप्रेस सी व्यू पर करतब दिखाने वाले नौजवान की गाड़ी समुद्र में डूब गई। बाबुल मदीना कराची सेंट स्पिट के करीब समुद्र में डूबकर 4 अफराद जाँ बहाक। ये 2012 की खबर है। यही 2012 के अंदर 7 अफराद समुद्र में डूब गए, 3 जाँ बहाक, 3 को जिंदा निकाल लिया गया। हॉक्स बे और किंजर झील में 5 अफराद डूब गए। ये भी 2013 की खबर मेरे पास मौजूद है। न जाने ऐसी कई खबरें हैं। मैंने तो जब से होश संभाला है तब से समुद्र में डूबने की इत्तलात मेरे कानों में तो आती रहती है। और ज़ाहिर माहौल जब नहीं होता तो आदमी तफरी भी करता है, सब कुछ करता है। लेकिन मसला ये है कि जिस तरह हम इससे पहले सिलसिला कर चुके हैं मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाई, इबरतनाक खबरों में इबरत भी लेनी है, सबक भी लेना है। इसमें मेरे लिए क्या है, इसको कोशिश कीजिए समझने की। कि जैसे वन व्हीलिंग ले लीजिए, जो मोटरसाइकिल चलाते हैं एक व्हील के ऊपर, हमने 12 समझाया ना करें मगर नहीं मानते। इस बार ईद के दिनों में तकरीबन शायद मरकज रोलिया लाहौर का या पंजाब के किसी शहर का मैंने पढ़ा कि तकरीबन 500 से 600 एक्सीडेंट हुए, हादसा हुए। और खुद जो हमने यहाँ सिलसिला किया था उसमें पता चला कि 500 से ज्यादा तो हादसा हुए और वो अस्पताल में दाखिल हुए, जो इलाज मालिजा की सूरत हाल बनी। मेरी मोटी अकल में ये नहीं आता। मैं बिलखुसूस हमारे जो नौजवान इस्लामी भाई अगर मेरे साथ इस चैनल पर हैं, मैं उनसे बात करता हूँ कि आखिर आपको क्या मसला क्या है। आप तफरी के नाम पर जाते हैं लेकिन बाद में पीछे कौन परेशान हो रहा है, कौन दुखी हो रहा है, किसको भुगतना पड़ रहा है। हमारे इस्लामी भाई अस्पताल गए ईद के दिनों में, तो उसमें जो बेचारे मोटरसाइकिल पर गिर कर प्लास्टर पांव पर, घर वाले अस्पताल के अंदर। आपकी तो ईद या इस तरह के जो भी मौके थे वो डिस्टर्ब हुए, लेकिन आप ये देखिए कि मेरी बेहतियाती मेरे घर वालों के लिए कितनी अजियत का सबब बन सकती है। अब ये जो समुद्र के किनारे पर आप देखेंगे ना, तो ये जरा दिखाइएगा वो जो गोल दायरा आपने बनाया था जिसमें वो बीच में एक खुश्क एरिया था, और फिर ये देखें जैसे ये है। अब ये साहिल, ये जो खुश्क एरिया है ना, मेरी नॉलेज के मुताबिक ये साहिल समुद्र, ये साहिल नहीं है। ये पानी पहले आता, आगे तक पानी आता, लेकिन चूंकि वहां एक खुश्क एरिया नजर आए जो किसी भी वजह से हो सकता है। अब ये कौम चलते चलते वहां तक पहुंची। पानी की लहर तो पानी की लहर होती है ना, आई ऊपर से लेकर बहती चलेगी। और ऐसा नहीं कि टुकड़े में खाली लहर आई होगी, मेरा अपना गुमान है, क्योंकि बहुत बड़ा साहिल का एक टुकड़ा है, तो पता नहीं कितनी बड़ी लहर हो, कितनी फीट तक हो, कितनी गहरी हो, किन किन को अपने साथ बहा कर ले गई हो, कौन कहां से किसकी लाश मिल रही है, कहां से किसकी लाश मिल रही है। यकीनन ये सब इबरत है हमारे लिए। अच्छा, माहौल पे जो साहिल समुद्र का होता है वो सब आपको पता है। उमूमन जिस तरह ये तफरी के जो भी मतलब इस तरह की जो जगह होती हैं, इसमें जो माहौल बना हुआ होता है इससे कौन नहीं जानता। ऐसे माहौल की तरफ जाना, फिर इन हादसात का शिकार हो जाना, ये बहुत सारी चीजें जहन में पैदा करती हैं। अब जैसे आज इस कदर मतलब के गम और परेशानी और दुख का आलम है हमारे मुल्क भर में है, या दुनिया भर की मीडिया ने इसको कुछ ना कुछ तो उसको कवरेज दी होगी, मगर हमारे बाबुल मदीना शहर के अंदर
تو ڈیفینیٹلی کہ یہ دکھ اور پریشانی جن جن جگہوں پر پائی جاتی ہے وہ ہے. ہم نے اس سے کیا سبق حاصل کیا؟ اگر یہ پچھلی خبروں کو سامنے رکھتے اور ہم رکتے، جیسا کہ ہم عبرتناک خبروں میں آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں، مختلف اسپورٹس کے نام پر سمجھاتے ہیں، مختلف تماشوں کے نام پر ہم آپ کو عرض کرتے ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات میں جو فنکشن اور طرح طرح کی بے ہودگی کے کام ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ کو عرض کرتے ہیں. پچھلے دنوں بھی شراب پی کر کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے. تو اس سے پہلے کہ ہم نے نہیں بیان کیا تھا کہ شرابیں پی کر، کچی شراب پی کر، جعلی شرابیں پی کر، زہریلی شرابیں پی کر یہ مطلب کہ یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں؟ کیا نہیں سمجھاتے؟ یہ خبریں نہیں آتی؟ ہم نے پچھلے دنوں آپ کو وہ مینٹل ہاسپٹل کا بتایا کہ منشیات جو نشے کے عادی تھے یہ آخر کار ذہنی مریض بننے کے بعد مینٹل ہاسپٹل میں داخل ہو جاتے ہیں. اب آپ کہیے جواب کہ جناب ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہمیں کچھ نہیں ہوتا. یہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا کر کے یہ سمندر کے آگے چلے جاتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا. اب موج تھوڑی دیکھتی ہے کہ میرے سامنے کون کھڑا ہوا ہے. موج آئی بہا کر لے گئی. کسی کی ماں بیچاری سو دکھ کے مارے پریشان ہو گئی، کسی کا باپ دکھ کے مارے پریشان ہوگا، کسی کا بھائی دکھ کے مارے پریشان ہوگا. اچھا یہ بھی میں عرض کر دوں کہ ابھی یہ نفسیاتی اثر ہے جو ہمارے پریکٹس ہے، نفسیاتی اثر ہے. ابھی کوئی بھی اپنے بیٹوں کو نہیں بھیجے گا، نہیں سمندر کے کنارے نہیں جانا، دیکھتے نہیں ہو اتنے لوگ ڈوب گئے، نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا. ابھی سب کھڑے ہو جائیں گے. اور ابھی تھوڑے دنوں کے بعد نفسیاتی اثر ختم. ابھی تقریباً 1.5 یا 2 ماہ رہ گئے آپ کے وہ مطلب بقرہ عید کو، جس کو بڑی عید کہتے ہیں، عید الاضحیٰ، جس میں جانور ذبح کیا جاتا ہے. دیکھیے گا اس میں یہ تفریح مقامات پر کیا عالم ہوتا ہے. حالانکہ بتانے والے بتاتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، کوتاہیاں کہاں نہیں ہوتی، ہم سے کوتاہیاں نہیں ہوتی، لیکن کیا ہم میں عقل و شعور نہیں ہے؟ ہمیں تیرنا نہیں آتا، ہمیں اس طرح کی نہیں آتا، ہم سمندر کے اندر چلے جاتے ہیں. سوئمنگ پول میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہوگا، سوئمنگ پول تو پھر بھی سوئمنگ پول ہوتا ہے، سمندر تو سمندر، اس کی کوئی تیز تھوڑی ہے ہمارے سامنے. اسی طرح اور بھی جو کھیل تماشے کرتے ہیں، میں تو سب کو عرض کر رہا ہوں اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھیں. با مقصد زندگی گزارنے کے لیے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی دعوت ہم دیتے رہتے ہیں. اس طرح اور بھی تفریح مقامات ہوتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، مر جاتے ہیں، بالکل آپس میں موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں. تو ان میں عبرت ہے ہمارے لیے، ان میں سبق ہے ہمارے لیے. ہمارے اسلام بھائی نے جا کر ان سے رابطے کیے تھے. آئیے دیکھتے ہیں مزید ہمارے پاس کیا کیا ویڈیوز ہیں اس معاملے میں. ہمارے 5 تھے جن میں سے 2 بچ گئے اور 3 کی ڈیتھ ہو گئی. اور جیسے یہ نہانے کے لیے چلے گئے 1 گھنٹے تک یہ نہیں آئے، کوئی بھی نہیں آیا میرے پاس. ایک میرا شاگرد شان وہ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد آیا میرے پاس. اس نے آ کے گرا میرے پاس، کیا لگا استاد جی سب کو بچا لو، سارے ڈوب گئے ہیں. پھر میں اس کو بٹھا کے بھاگا گیا ہوں، جا کے دیکھا ہے وہاں پہ مجھے کوئی نہیں ملا. میں تقریباً 4:30 بجے سے لے کے اور رات 9 بجے تک بھاگتا رہا ہوں، لیکن ہمیں کوئی بھی نہیں ملا. اتنا شناختی کارڈ تھا اکمل کا میرے پاس، اس کا پرس موبائل میرے پاس تھا. اکمل کی ڈیڈ باڈی ہمیں ملی ہے تقریباً 1:30 بجے تک. دوسرا جو مجید تھا یہ تقریباً 3 راتیں 2 دن پانی کے اندر آیا. اس کی کنڈیشن یہ تھی کہ یہ نہیں جا سکتا تھا. اس کے سارے رشتہ داروں نے، ہم نے بات اس کے ماں باپ سے کی. اس کو میں نے کہا اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کو ہم زیادہ تکلیف میں رکھیں تو پھر میں اس کو بھیج دیتا ہوں. پھر اس کے والد صاحب نے کہا بیٹا صرف 5 منٹ مجھے ٹائم دو، میں آپ کو بتاتا ہوں. 5 منٹ بعد اس کے والد صاحب نے کہا بیٹا آپ دفنا دو. ہم پیچھے بیٹھے تھے، پانی کی لہر آئی ہے اس طرح اوپر سے اور یہ نیچے کو لے کے گئی ہے زندہ کو. جس طرح استاد نے بتایا اس طرح واقعہ بھی ہوا. جب ہم ڈوب رہے تھے نا اس ٹائم آدھی میں چلے گئے تھے، سب کچھ ڈوب گئے تھے. جو میرے ساتھ یہ تھے نا وہ سب کچھ ڈوب گئے تھے. میں اس طرح بہل نکلا ہوں نا، اوپر تیر رہا تھا. جب نیر آتی نا اس کے سریے میں بہ رہا ہوں. میں نے کوشش کی تھی، آوازیں سب نے لگائی تھی، مگر وہاں تھا ہی نہیں کوئی سننے والا. جب میں بہ رہا نا سب کو یہی کہہ رہا ہوں، میں نے کہا سب کے سب ڈوب گئے. وہ یہی سمجھ رہے تھے مذاق کر رہا ہے. میں تو یہی کہوں گا بھائی سمندر جانے کے لیے نہیں، صرف دیکھنے کے لیے. اس کے اندر جاؤ ہی نہیں آپ. یہ پانی ہے، پانی کہاں
پانی انسان کو کہاں بچاتا ہے، وہ تو لے کے چلا جائے گا، جو پیچھے رونے والے وہ تو روتے رہیں گے۔ ہم صبر کی دعا بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ صبر دینے والا ہے، اللہ اپنی رحمت سے ان کے والدین کو بھی صبر عطا فرمائے۔ مرحوم کے لیے مل کر دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ مولا کریم الہ العالمین، ہماری، ہمارے والدین کی، ساری امت کی مغفرت فرما، بالخصوص ہمارے بھائی مجید اللہ اور دیگر جتنے ہمارے اسلامی بھائی بیچارے ڈوب کر انتقال کر گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، تمام کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، سب کی آخری منزلیں آسان فرما، سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روز قیامت شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین، ان کے جتنے لواحقین ہیں سب کو صبر عطا فرما، صبر پر اجر عطا فرما، اس صدمے کو سہنے کی ہمت و توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ آئیے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اطاری ہے، میں اکاڑا چک نمبر 1 1 5 مرلہ اسکیم سے بات کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب، یہ جو لوگ اپنا سمندر وغیرہ پہ نہانے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں لوگوں کی جان کے خطرے کا نقصان ہے، کیونکہ سمندر میں کس وقت آدمی ڈوب سکتا ہے۔ تو اس میں یعنی کہ لوگوں کو میرا مدنی چینل پر پیغام یہ ہے، آپ ایسا نہ کیا کریں، کیونکہ یہ جو ہے اپنے گھروں میں پمپ وغیرہ کا سسٹم ہے، ٹینکی وغیرہ رکھی ہوئی ہے، تو اپنے اس پہ اپنا انتظام کریں۔ یہ جو سمندر پہ جانا، نہروں پہ جانا، اس میں بہت سارے لوگوں کی جانوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہمارے اکاڑا میں تو ایک اسلامی بھائی تھا، وہ نہانے کے لیے گیا تو ان کی شرطیں لگی تھی، کہنے لگے کہ جی اگر ہم آپ کو 500 روپے دیں گے، کون بڑی نہر پار کرتا۔ تو جب ان کی شرطیں لگی تو وہ اسلامی بھائی جب بیچ میں گئے تو درمیان میں جو تھک گئے تو وہ پار نہیں ہو سکے، تو اسی جگہ پر ہی وہ ڈوب گئے اور ڈوب کے مر گئے۔ تو ایسی حالت کی موت، بالکل یہ جو ہے موت آئے تو عشق رسول میں آئے یا قرآن شریف پڑھتے ہوئے نماز کی حالت میں آئے۔ جو ابھی عید کے دنوں حادثہ ہوا تھا تو ان میں بتایا گیا تھا کہ جو لاشیں نکلی ہیں، اور وہ بھی اس وقت اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ اپنے ماں باپ کے ایک ہی بیٹے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ماں باپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، دیکھنے والے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو ابھی جو عید کے دن جو حادثہ ہوا تھا تو وہ بہت ہی جو عبرت ناک تھا کہ دیکھیں کہ وہ عید منانے کے لیے نہانے کے لیے گئے تو ان کی موت کیسے واقع ہوئی، پتہ نہیں ان کو توبہ نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی۔ حاجی صاحب اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ عوام کو کس طرح کرنا چاہیے اور جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ ہم مرنے والے کے لیے اچھا گمان کریں گے، موت مومن کے لیے کفارہ بھی بنتی ہے، اور مرنے والے کو اچھے انداز سے یاد کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، البتہ ہمیں ان ڈوبنے والوں سے یقیناً ہمدردی ہے، عبرت اپنی جگہ پر ہے، ہمدردی اپنی جگہ پر ہے، ہمیں ہمدردی بالکل ہونی چاہیے، اور اس معاملے میں افسوس اپنی جگہ پر بھی ہونا چاہیے، عبرت اپنی جگہ پر ہونی چاہیے، اور ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کے ساتھ ہمیں غم خواری کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ اس بات کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی افسوس ہوا ہے۔ اب آپ جو کہہ رہے ہیں، اب یہ میں نے اب عرض کی نا میرے پیارے اسلام بھائی کہ ہمارے یہاں ہے نفسیاتی، ہم نفسیاتی مریض ہیں، ہم کچھ بھی ہوتا ہے نا تو ہم بڑے پریکاشن ہو جاتے ہیں، احتیاطیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے کہ میرے پاس جو خبر ہے اس میں لکھا ہے کہ سمندر سے جو ہی کوئی لاش نکالی جاتی
इंतजार करने वाले वरसा दौर पड़ते कि शायद इनके प्यारे की लाश मिल गई हो। ये कितनी अजीब सी कैफियत, तस्वुर करें कि कैसे बेचारे दौड़ते होंगे जब नहीं मिलता होगा, और ये नहीं पाते होंगे तो उस वक्त भी इनकी मतलब पाते होंगे तब भी गम, ना पाते होंगे तब भी अफसोस और गम। कई लोग अस्पताल में गम से निडाल अपने प्यारों की मैयतों के इंतजार में सब्ज खाने लाई जाने वाली लाशों को शनाख्त के लिए देखते रहे। अब खबर है कि जब ये सब जो वाकया हुआ तो रिश्तेदार समुद्र में नहाने पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करते नजर आए। अब ये मुतालबा कब तक? मतलब जैसे वो एक हमारे इस्लाम भाई ने अभी बयान दिया ना वो वीडियो, कि ये देखने के लिए, नहाने के लिए नहीं है। अब हमको नहाना नहीं आता, हमें क्या जरूरत है समुद्र में जाने की, तफरी करने के लिए। फिर ये जो हमारी, क्या इस्लामी बहनें बोलूं, खवातीन जो हमारी जाती हैं, और जो चाहे ये सिर्फ ये सीव्यू की बात नहीं कर रहा, हमारे यहाँ साहिल समुद्र 2-3 जगहों पर वाक़ है। हॉक्स बे पर भी है, साइंस पीट पर भी है, एक पैराडाइज पॉइंट कहलाता था, शायद वो भी अभी भी मौजूद होगा। हाँ है, नहीं है, पहले तो था। और भी हैं, और भी 3-4 जगह हैं जो हमारे मुल्क के अंदर ऐसी हैं जहाँ पर लोग नहाने के लिए जाते हैं। इस तरह के वो बस पानी की सी जगह बनी हुई हैं, और वहाँ डेफिनेटली डूबने के वाक़यात होते हैं। पत्थर पड़े हुए होते हैं, समुद्र के अंदर पत्थर पड़े हुए होते हैं, पत्थर लगता है, पाँव फट जाता है, पाँव कट जाता है, और फिर पानी में गिरते हैं। फिर एक बेपर्दगी होती है। और इस तरह के जो पिकनिकों पे जो जाती हैं लड़कियां अपने ख़ानदान वालों के साथ, इसी तरह जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो दोस्त और ये सब को एजुकेशन के मारे हुए जो लोग हैं बेचारे, ये भी जो जाते हैं और इस तरह की तफरियाँ करते हैं, और जो तूफान बदतमीजी होता है, मौसीकी, गाने, ये वो पकाना करना, गफलत भरा और गुनाह भरा जो मामला है, मैं सिर्फ उसके मुतालिक इस वक्त आपसे कलाम कर रहा हूँ। फिर इस कैफियत के अंदर ना होने वाली चीजें हो जाती हैं, बेहयाइयाँ होती हैं, फिर बहुत कुछ हो जाता है। तो अब आप कहते हैं पंप पर कर लो, ये कर लो, ये कोई नहाने थोड़ी जाते मेरे प्यारे इस्लाम भाई, तफरी के लिए जाते हैं। नहाने के लिए बाथरूम है, को समुद्र में आदमी नहाने जाता है, कितना खारा पानी होता है। ये तफरी है, पिकनिक है, और कोई इस बात की परवाह भी नहीं करता कि वहां पर माहौल क्या होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इससे इबरत देने की तौफीक अता फरमाए। मेरा तो मशवरा यही है आपको, तमाम मदनी चैनल के नाजरीन को, कि आपने बड़ी मुशक्क़तों के साथ अपनी औलाद को पाला पोसा बड़ा किया है। आप हरगिज़ से गवारा नहीं करेंगे कि समुद्र में डूबी हुई लाश आपके बेटे को मिले, या अल्लाह ना करे कोई बेदर्दी के साथ इस तरह कोई सुलूक कर जाए और मिले। एहतियात कीजिए, हमारा काम समझाना है, हमारा काम अपने बच्चों को एहतियात सिखाना है डेफिनेटली। अब उसके बाद अगर जो नसीब होना वही है जो अल्लाह को मंजूर होगा। तकदीर गालिब आ जाए तो तदबीर काम नहीं आती, और वैसे तदबीर के नाखून से तकदीर की गिले नहीं खुलती। हम कोशिश जारी रखें, बच्चों को समझाते रहे। अगर इस वक्त भी मेरे साथ मदनी चैनल के ऊपर ऐसे नौजवान बिलखुसूस हैं, तो देखिए अभी पता नहीं है कि अंदर में समुद्र ने कितना, कहीं कोई मनोरा से मिली है तो कोई लाश कहां से मिली है, क्योंकि पानी तो ले जाता, फिर जहां भी वो निकालते पानी, कहीं अंदर से मिली है तेज है। तो अब पता नहीं कि मस्जिद मिलती है या नहीं मिलती है भी या नहीं है, वी डोंट नो, हम कुछ भी नहीं जानते। लेकिन हमारे अंदर इबरत के मदनी पुल होने चाहिए। आइए मजीद जो हमारे इस्लामी भाइयों ने जो रिकॉर्डिंग की है वो देखते हैं। मेरा एक कजन है, एक भतीजा है जो डूब चुके हैं। एक की कल सुबह बॉडी मिली है, उसको दफना दिया, दूसरे की तलाश जारी है। ये नहा रहे थे, बच्चे आए हुए थे छोटे पिकनिक मनाने के लिए। एक कजन आ गया मेरा बाहर और एक भतीजा आ गया बाहर। तो इन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो लहर आई है, इतनी स्पीड से थी, वो बहा कर पीछे ले गई। हम नहाने के लिए तो गए, तो वापसी 2 नहीं आएगा, 2 आ गए। नहाने जब गए ना तो मेरे टांगों तक पानी आने लगा, तो एकदम मुझे थोड़ा खतरा भी लगा, तो मैं बाहर आ गया, पानी वानी पीने लगा। फिर छोटा वाला भांजा, उसको हमदा ने बाहर भेजा था, उसके बड़े वाले भाई ने बाहर भेजा था। पानी बहुत तेजी में था, फिर भी लोग उधर तक जा रहे थे। तो वापसी आके देखा तो वो दोनों नहीं थे, मान रहे नहीं थे। दोनों एक दूसरे से, मामू भांजे एक दूसरे से खेलते हुए आ रहे थे। किसी की बात नहीं मानी, बड़ी बहन की बात नहीं मानी। साबिर की लाश मिल चुकी है और हमदा की अभी लाश नहीं मिली। तकरीबन हमदा की उम्र है 16 साल और साबिर की है 19 साल। मैं हमजे का वालिद हूँ।
अनवर मेरा नाम है। मेरी साली ने फोन करा, मेरे को कहा जा जीना देख के आओ अपने बच्चों को। मैं सब कोई हादसा हो गया हो, मेरे को थोड़ी पता बच्चे नहाने गए हुए। जब पता लगा, जब मैं सीवी पहुंचा हूँ, दूसरे दिन सुबह उठ गए, पहले मुर्दा खाने भेज दिया, क्या जा माँ देख के आओ। मैं जब देखने गया, माँ कोई नहीं मिला, लाश वाश नहीं मिली मेरे को। मैं वापसी आ गया। बच्चे से छोटे, एक हमजा था, एक साबिर था, एक मुस्तफा, चार बच्चे थे। मेरी सास लेके गई उनको, अब मेरी साली लेके गई बच्चों को। क्या मैं घुमाने लेके जा रही हूँ, मैं ले जाना। बच्चे बता रहे माँ हम आगे गए ना, एकदम पानी ने खींचा हमारे को। छोटे बच्चों को, बड़े बच्चे ने बोला तू बाहर जा। मेरे बड़ा हमजे ने बोला मेरे बेटे को, जान जेबे तो तुम बाहर जाओ, पानी तेज है। वो बाहर आ गए कैसे मेरे बच्चे, और बच्चे जो बड़ा वाला मेरा साला वो आगे चले गए। जो बाहर आए मेरे बच्चे के अबू, वो नजर नहीं आया हमारे को, साबिर ना हमजा नजर नहीं आया। लाश मिली उसकी 4 दिन के बाद। ये हमारे पड़ोसी हैं, बहुत गरीब लोग हैं। इनका वाहिद कफील यही था साबिर। बहुत असर पड़ा है। किसी घर का वाहिद कफील चला जाए, कमाने वाला वाहिद शख्स हो जो कमाने वाला, तो उस घर में तो जीते जी मातम हो जाता है। कुंवारा बच्चा था वो, 20-21-22 साल का बच्चा था वो। मदनी चैनल वालों की भी मेहरबानी है जो इनसे आके इनके दुख को अपना दुख समझ रहे हैं। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। तो मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वाक़ये को सामने रखकर आप अपने बच्चों की तरबियत फरमाएंगे। इन्हें उन तमाम तर कामों से रोकने की कोशिश कीजिए जिसमें इस तरह जाने ज़ाया होने का अंदेशा होता है। बाद वक़्त जब समुद्र के पास जाते हैं ना, तो ये वाकई नहीं मानते, ये कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। और बाज़ों ने तो माजी का जो मुझे अंदाज़ा है, बच्चे हाथ में लेके जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हाथ में लेके जाते हैं, बच्चों को नहलाते हैं। अब बचपन से बच्चे भी देख रहे होते हैं कि ये सब हो रहा होता है। ठीक है, अब नहीं हुआ। जैसे सिगरेट पीने वालों को हम समझाते हैं यार सिगरेट नहीं पी, इससे कैंसर हो जाता है। नहीं नहीं, इतने लोग पीते हैं, उनको थोड़ी होता है। अब हर एक को नहीं होता, तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हर किसी को नहीं होता। जिनको हुए हैं वो कौन है? वो भी तो सिगरेट पीने वाले थे। किसी का मुंह सड़ गए, किसी के फेफड़े खत्म हो गए, किसी का क्या, किसी का क्या, किसी का क्या। तो ये इस तरह की वाक़ियात से हर एक को इबरत लेनी चाहिए। आप जहन बनाएं मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों कि हम ऐसी तफरीह से बचेंगे जिसमें इस तरह जाने का अंदेशा भी हो, गफलत भी हो, और अल्लाह की नाफरमानी के भी अंदेशे रहते हैं। पता है आपको, फिर ऐसी जगहों पर जाकर नमाजें कौन पढ़ता है? नमाजों का वक्त होता है, जोहर का वक्त आया, असर का वक्त आया, मगरिब का वक्त आया, इशा का वक्त आया। अब यही कहने वाले कहेंगे कि ठीक है इनके साथ हो गया तो हो गया, फिर इंतजार कीजिए, अल्लाह ताला खैर करे। अक्लमंद वो है जो गुजरे हुए वाक़े से इबरत हासिल करे। फ़अतबीरू या उलिल अब्सार, तो इबरत हासिल करो ए अक्ल वालों। अक्ल वालों से बात की जा रही है, आंख वालों से बात की जा रही है, जो दिल की आंखें जिसकी खुली हो। जनाजा तो पैगाम देता है, जनाजा आगे आगे कह रहा है ए जहां वालों, मेरे पीछे चले आओ तुम्हारा रहनुमा में हूं। पता चला है कि इसमें 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 25 साल, 26 साल तक के नौजवान और जवानों के ये वाक़ियात हैं। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। हमारे लिए इसमें देखने, सीखने, समझने का भी बहुत कुछ है। बड़ी बड़ी ज़िंदगी के प्लान, ज़िंदगी के मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं। कोई चीज़ हम कर नहीं पाते और मौत के घाट से जाते हैं। इसी तरह तफरी के लिए जाते हैं। मैं फैमिली को जानता हूँ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, तफरी के लिए गए थे फैमिली, खानदान वाले। वापसी में आते आते गाड़ी खाई में गिरी। बाप और बेटे दोनों एक ही साथ एक ही गाड़ी में थे, इंतकाल कर गए। फैमिली के दीगर मेंबर गाड़ी में पीछे की तरफ आ रहे थे। वो देख रहे थे कि इनका अजीज
खाई में गिर रहे हैं, इंतकाल हो गए। मेरी हर मुसलमान से हमदर्दी है और उसके लिए दुआ मगफरत भी हम करते हैं अपने रब तबारक व तआला की बारगाह में। लेकिन ये सारी इबरतें हैं, सारी इबरतें हैं। इन खबरों के अंदर जो हम ये सिलसिला भी आपके पास लेकर आए, इबरतनाक खबरें, इसका पस मंजर ये कि ये हुआ, यकीनन आपने दुनिया भर की मालूमात हासिल करने की कोशिश की, क्या हुआ, ये हुआ ऐसे जैसे ये हुआ। हमने लिया क्या इससे, हमने सीखा क्या इससे, अपने लिए क्या लिया। अभी नफ्सियाती असर ना लीजिएगा, अभी कोई भी नहीं जाने, पता चलेगा वो जगह भी बंद कर दी गई है नहाने की, लेकिन कब तक बंद रहेगी, आप कब तक रुके रहेंगे। हर कोई अपना ज़हन बना लेगा, नहीं ऐसी मतलब कि गफलत भरे माहौल में मैंने जाना नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। दावत इस्लामी के माहौल में आइए, मदनी काफिलों में सफ़र कीजिए, मदनी इनामात पर हम अमल करें, हफ्तावार इज्तिमात में शिरकत करें और कुरान की तिलावत करें, गफलत भरे अंदाज से बचें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इबरतनाक खबरों में आज जो टॉपिक प्रेजेंट करा है ये बहुत ही काबिल फिक्र और काबिल गौर है। सबसे मैं एक बात कहना चाहूँगा तमाम सुनने वालों को, ये जो सानिया आया है हमारे लिए बहुत ही गहरी मिसाल है, हमें इससे सबक लेना चाहिए। हमारे बीच पॉइंट पे और समंदरी जो जगहें होती हैं वहाँ पे बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से और वहाँ के जो वॉलंटियर्स होते हैं उनकी तरफ से बाकायदा लिखा हुआ होता है कि ज्यादा पानी की देर तक ना जाएं, मगर उसको वो फॉलो नहीं करते और आगे तक चले आते हैं दोस्तों के हंसी मजाक के नाम पर या दोस्तों की एक दूसरे के साथ शर्त लगाने के नाम पर कि सबसे ज्यादा स्विमिंग मैं करूंगा, सबसे आगे तक मैं जाऊंगा, और वो आगे जाना इस शैतानी हरबों के अंदर आगे तक जाना वो उन लोगों को जिंदगी से आगे ले जाता है, मौत के करीब ले जाता है। और यही हुआ, आखिरकार वो लोग मौत का लुक़्मा अजल हो गए। मैं उन तमाम लवाहिकीन से उनसे मैं मदनी इंतजा करूंगा कि खुदारा अब जो उनके बाद जो छोटे हैं, जो उनके बाद जो लोग हैं वो इस हादसे से सबक लें और दोबारा ऐसी जगहों पे ना जाएं और वहाँ की लिखी हुई तहरीरों को वहाँ पर आवेजा जो बोर्ड होते हैं एहतियाती तदाबीर के उसको फॉलो करें, तो इंशाल्लाह इन तमाम सानियात से बचेंगे। और मैं उन तमाम लोगों को उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मरहूमीन के ईसाले सवाब के लिए मदनी माहौल में आ जाएं, मदनी माहौल में आके अल्लाह उसके रसूल की सुन्नत को अपनाएं ताकि उन मरने वालों के लिए सदका जारिया स्टार्ट हो जाए, उनके लिए कुशादगी हो जाए कब्र में, आखिरत में, और खुद उन लोगों की इस्लाह हो जो इस माहौल में आके दुनिया और आखिरत के जो तैयारी होती है उसकी तैयारी करेंगे। मेरी एक बार फिर तमाम लवाकिन से मैं ताज़ियत करूंगा और हम सब नौजवानों को जो कि इन तमाम खबरों को बार बार सुनते हैं, देखते हैं, उसके बावजूद भी होश के नाखून नहीं लेते। और आपकी तलाक की अर्ज करूंगा मैं इमरान साहब कि अभी चंद दिनों पहले दोबारा वहाँ के जो लोग हैं, मुकामी लोग, उन्होंने बताया कि सानिया के बाद दोबारा लोग वहाँ पे अंदर पानी में जा रहे हैं और उस नसीहत से, उस मैसेज से वो लोग उसको नहीं मान रहे। तो प्लीज खुदारा अपने हाल पर रहम करें। नहीं मानते। आप देखिए कि सड़क पर लिखा हुआ है 60, कोई 60 पर गाड़ी चलाता है, 120 गाड़ी चलाता है, 110 कोई गाड़ी चलाता है, सिग्नल पे कोई रुकता है। सिग्नल तो इतना बड़ा बत्ता दिखा रहा है, इतनी बड़ी बत्ती दिखा रहा है, लाल कलर का। पुलिस वाले हमको कहते हैं, इंटरव्यू देते हैं हमको, हम रोड पे आके यूं खड़े हो जाते हैं, रुक जाओ, कोई रुकने के लिए तैयार नहीं होता। हमारे पांव पे मोटरसाइकिलें चढ़ा कर चले जाते हैं। अब एक हमारा मिजाज अजीब है, हर मुल्क में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कुछ मिजाज ऐसा अजीब है। बाद मुल्कों के अंदर अगर कहीं पाबंदी है तो कहीं पाबंदी है, चाहे वो समुद्र के किनारे पर हो या सड़क के ऊपर हो, वो रुकते हैं, समझते हैं, मानते हैं, कानून है। अब मतलब ये कि कोई आकर हमको धक्का मारे तो नहीं आ रहा ना कि ये करो। हमारे मिजाज के अंदर बहुत ज्यादा जज्बाती और ना समझ वाली क्वालिटी भी है। मैं नहीं कहता सारे ऐसे हैं, अब जिनके गया वो तो यकीनन वो कैसे वो अपने बच्चों को समुद्र के पास भेजेंगे, उनको तो नहीं भेजना चाहिए, ना ही किसी और को भेजना चाहिए। ना जाएं, मान जाइए। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ अता फरमाए। और इस तरह जो भी मतलब के जो ट्रैफिक कवानीन भी होते हैं, इस तरह के जो कवानीन होते हैं, ये हमें रोकते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। बस अल्लाह करे कि हम मतलब ये अपने ऊपर लेने के आदि बन जाए ना। अब अपने ऊपर ले लेंगे यार, ये चलेगा, ऐसा नहीं कि हमें भी
کھینچا جا رہا ہو کہ تم بھی چلو, ہمیں کچھ نہیں ہوتا, یہ راگ لاپنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. امیر سنت میرے پیر و مرشد بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, محتاط آدمی سدا سکھی رہتا ہے. محتاط رہیے, احتیاط اختیار کیجیے, اور بیجا جذبات میں آ کر اور کسی کو دکھانے کے لیے, شرطیں لگانے کے لیے, پھر معاذ اللہ بے پردہ لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں, ان کو اپنے وہ طاقت کے اور اپنی اس کی فنکاری کے جوڑ دکھانے کے لیے کہ وہ بولے گی کیسا کر رہا ہے, وہ ڈوب ہو گئے. نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی راہ میں ایمان اور عافیت پر شہادت کی موت عطا فرمائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا پر میں اپنے سلسلے کا اختتام کروں گا, اس دعوت کے ساتھ بھی کہ اب آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیں. ان کے لواحقین سے اگر میری آواز پہنچ سکتی ہو تو برائے کرم ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں, ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں, اپنے دیگر بچوں کو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کریں, اور جیسے ہمارے سائل محترم نے فرمایا کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے, ثواب جاریہ کے لیے کوئی سی صورت پیدا کر دیجیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اپنے رب تعالیٰ کے حضور, اور وہ دعا قبول بھی ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موت بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ والسلام. یا اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت کی موت عطا فرما. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک, تیری راہ میں شہادت کی موت عطا فرما. واجعل موت بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور تیرے حبیب کے دیار میں مجھے موت عطا فرما. اور الحمدللہ یہی ہوا. آپ کیا مزار فائز الانوار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بنا, اور آپ آقا کے قدموں میں آرام فرما ہے. اللہ تعالی ہم سب کے دین و ایمان, جان و مال, عزت, آبرو, گھر بار, کاروبار, رزق حلال, اہل و عیال, نسبت سب کی حفاظت فرمائے, سب میں برکت عطا فرمائے. اگر اس طرح کی کوئی عبرتناک خبریں, عبرتناک واقعات آپ کے پاس ہوں تو یقیناً ہمیں میل کیجئے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے enk@madanichannel.tv. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. فاعتبروا یا اولی الابصار, ترجمہ کنز الایمان, تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے.